Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English. Learn it yourself. Learners, in this video, we will be learning 3.5 Drafting a Virtual Message from Section 3 Writing Skills of Class 12th English, Maharashtra State Board. This question is going to come for 4 marks in your HSC board exams. Now, this is very new, but not to worry because it is very interesting and it is very easy. एंड अनलाइक अदर राइटिंग स्किल्स आपको बहुत कम लिखने पे 4 मार्क्स मिल सकते हैं. So let us start learning. In this video, first we will understand the meaning of a virtual message. We will look at the format that we have to follow while writing this virtual message in your examination. We will look at some do's and don'ts that we have to keep in our mind, and finally together we will solve one example question from your textbook. So do watch the video till the end. Now let us start learning. Before we begin learning drafting a virtual message, we need to understand its origin, which is in the concept of communication. Communication has always been the integral part of human life since inception. But what is communication? If I ask you what is communication, how will you define in simple terms? We can say it is exchange of ideas, thoughts, and information from one person to another person. That is what is called communication. Now, being the most intelligent animal on earth, humans have evolved many forms of communication. And broadly speaking, we can divide these forms of communication into 3 major categories: oral, written, and virtual. Oral is when we are communicating with the person while talking. बात करके अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग वाइल राइटिंग लेटर्स. एंड वर्चुअल कम्युनिकेशन, what is virtual communication? Virtual communication is that type of communication that includes the use of technology. टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हो आप, बोथ ऑडियो एंड वीडियो, विथ पीपल हु आर नॉट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ अस. आज के ज़माने में व्हेन दिस ह्यूज रेवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और हमारे पास लिमिटेड मीन्स नहीं है कि अगर आज हमें किसी से बात करनी है तो वो हमारे सामने ही होना चाहिए, हमें उनसे जाकर मिलना ही पड़ेगा. आज के टाइम पे हमारी ज़्यादातर कम्युनिकेशन ऑनलाइन होती है विद द यूज़ ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप. तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बेसिकली सारी कम्युनिकेशन जो कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप के थ्रू या दूसरी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हो, तो उसे कहते हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन. Now, what is the message? जैसे मैंने कहा that communication has always been the most important part of our lives. So passing on message is also one of the most important aspect in communication. Communication जितना important है हमारी life में, उसका ही एक important part है message. हमें एक दूसरे को message pass on करना अच्छे से आना चाहिए. That is why this topic is included in our portion. This is the skill that we all of us should master. Now what is expected in this question? ये क्वेश्चन में, इस टॉपिक में क्या एक्सपेक्टेशन है और क्वेश्चन कैसे आएगा. एग्जाम में क्वेश्चन में आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाला जाएगा. फॉर एग्जांपल, आपको किसी के बिहाफ पे मैसेज रिसीव करना है, दैट पर्सन इज़ अनेबल टू टेक द मैसेज फॉर वट एवर रीज़न, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई इंसान कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मैसेज नहीं रिसीव कर सकता है, ही इज़ आउट और उसका मोबाइल शायद आपके घर पे है, तो उस मोबाइल में फ़ोन आता है. तो वो जो मैसेज आप रिसीव करोगे, उस मैसेज को आपको अंडरस्टैंड करना है और आपको रिप्रोड्यूस करना है उस इंसान के लिए रिटन फॉर्म में, जिसके लिए वो एक्चुअल मैसेज था. नटशेल में अगर हम समझे तो आपको मॉडर्न एज पोस्टमैन का काम करना है. आपको किसी और के बिहाफ पे मैसेज रिसीव करना है और उस मैसेज को रिप्रोड्यूस करना है रिटन फॉर्म में उस पर्सन के लिए जिसके लिए वो एक्चुअली कन्वे किया गया था. दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज. नाउ क्या फॉर्मेट है जो हमें ध्यान में रखना है? एग्जाम में आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है टू ड्राफ्ट अ मैसेज?
इट इज़ दिस। सिर्फ 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, डेट और टाइम, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहा है तो आप अपने हिसाब से कोई भी डेट या टाइम लिख सकते हो। क्वेश्चन में अगर दिया है तो उसके हिसाब से आपको डेट और टाइम लिखना पड़ेगा। देन नेम ऑफ द पर्सन टू होम द मैसेज इज डायरेक्टेड, जिसके लिए आप ये मैसेज छोड़ रहे हो, लिख रहे हो, उसका नाम सबसे पहले डेट और टाइम के बाद, ताकि वो मैसेज वही इंसान पढ़े। फिर आएगा बॉडी ऑफ द मैसेज, जो कि एक पैसेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम लाइन में, 3-4 लाइन में जो भी मेन एसेंस है, मेन इन्फॉर्मेशन है, आपको इस मैसेज में लिख देनी है। एंड लास्ट में नेम ऑफ द राइटर, मैसेज लिखने वाले का नाम आपको लिखना है। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू विल इंक्लूड इन योर मैसेज। नाउ लेट अस लुक एट सम डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़रूरी बात कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी है उसी को इंक्लूड करना है। अपनी तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करना है। इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है। हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन का एक पार्ट ऐसा हो जहाँ पे सिचुएशन में आपको बताया, कन्वर्सेशन दी जाए कि ये कन्वर्सेशन आपके और इस पर्टिकुलर पर्सन के बीच में हुई है, जो कि किसी और के लिए मैसेज दे रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर कन्वर्सेशन दी गई है तो वो डायरेक्ट स्पीच में दी जाएगी। आपको एज इट इज़ नहीं कॉपी करना है, आपको उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। मैसेज हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल और क्लियर हो, शॉर्टकट और एब्रीविएशंस आप यूज़ ना करें, ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स और मिस्टेक्स ना हो। जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका टोन है मैसेज में, वो फ्रेंडली और पोलाइट होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे, एम्बिग्विटी या अनक्लियरिटी क्रिएट करे। So these are the do's and don'ts. Now let us together solve one example question from the textbook. This is how a question can come. You are Priyanka, a personal assistant to Miss Sen. She was away attending a meeting when Mr. Garg rang up. You spoke to him and jotted down his message in your notepad. Draft the message for Miss Sen using the information in your notes given below. Mr. Garg rang up 5 p.m., has received the CDs and the posters, coming tomorrow to thank Miss Sen and to personally hand over the check. So now I'm telling you कि क्यों मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है अनलाइक अदर राइटिंग स्किल्स, क्योंकि आपको ज़्यादातर कंटेंट जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कंटेंट क्वेश्चन में है आपको ध्यान से कॉमन सेंस यूज़ करके उसे प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट अस सी इस क्वेश्चन के बेस पे आप मैसेज कैसे क्रिएट करोगे फॉर मिस सेन। This is how your message should look like. This is the presentation that you have to follow. आप स्टार्ट करोगे डेट और टाइम से। जैसे कि टाइम उसमें दिया गया था कि 5 o'clock को, 5 PM को मिस्टर गर्ग का कॉल आया था, तो ऑफ कोर्स 5 o'clock को आपने कॉल अटेंड करके तुरंत ही आप मैसेज लिख दोगे। तो 5:10 का टाइम आप 5:15 भी डाल सकते हो आप। सो 5:10 PM डेट आपने डाली है, डेट वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो। एक लाइन छोड़ के मैडम, क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में मिस सेन फीमेल है तो मैडम, और ऑफ कोर्स आप उसके एम्प्लॉई हो, आप उसके असिस्टेंट हो, तो आप उनको उनके नेम से नहीं बुलाओगे, आप मिस सेन नहीं लिखोगे, आप मैडम लिखोगे, कॉमा, फिर जो पूरा मैसेज जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। मिस्टर गर्ग called up at 5 in the evening to say that he has received the CDs and the posters. He also told that he will be coming tomorrow to thank you and to personally hand over the check. Priyanka, PA. PA means the short form of personal assistant. So this is how you will draft a message. बस इतना ही लिखने पे आपको 4 marks easily you can gain. I hope you enjoyed the video and enjoyed learning with me. If you like the video, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.